करके साथ। ओके अभिजीत, लेट्स स्टार्ट। Yes. So, uh, like, let me introduce myself. First of all, myself, Chaudhar Abhijit Ramdas. I've got all India rank 487 in this CSE 2024. And before this, I've appeared in UPS interview for the 5 times. And during these attempts, my optional has been PSR, and I could score really good marks in the PSR. I even touched 300 in one of the attempts. And my score has been very consistent. It is always 260 plus. So there are some foundational things which I have worked, and that's why I could get these marks. Because people are crying nowadays that PSR is not that scoring which it used to be. But क्या है ना कि कुछ कुछ चीजें हैं जो PSR में बहुत important है. I think in my initial attempts, I had worked on that. That's why I could get really good marks. So those things you need to keep in your mind while studying the PSR. Because lots of people say, sir, we have done each and everything for the PSR. We have read this, we have read this. Then we joined this course. हमें बहुत सारे टेस्ट दिए है फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है लेकिन उसका रीजन है कि स्कोर क्यों नहीं आते ठीक है क्या है ना हमेशा ना एक इवोल्यूशन हुआ है पीएसआर में एंड पीपल उन्हीं पुरानी वाली चीजों पे ही ध्यान रखते हैं और वही करते हैं और उसी में सोचते हैं कि मार्क्स आए एंड उसलिए उनके स्कोर्स नहीं आए तो ये सेशन उनके लिए है जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं इसको और उनके लिए भी है जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं दिए या फिर पीएसआर के लिए प्रिपेयर कर सो मैं जैसे मेंस के सेशन में भी मैंने बताया था कि देर आर थ्री बेसिक पिलर्स इसमें भी थ्री बेसिक पिलर्स है फर्स्ट वन इज कंटेंट वाला सेकंड वन इज पीवाईक्यूज एनालिसिस एंड थर्ड वन इज आंसर राइटिंग ओके सो I would ask other people to switch on their cameras so I could interact in a better way. Okay. Yes, sir. So मेरा ये मानना है कि let me be very clear in this in all these three pillars. Okay. The first pillar which I have told you is content one. Okay. Content. What is content? People say ki sir, we have read ma'am's notes from line to line, from word to word, and still we are not getting good marks in the PSR. So everybody knows Ishubra ma'am's notes are the foundational uh, notes in the PSR. Everybody does refer those notes. Okay, so those notes should be your foundational प्रिपरेशन सो मेरा मानना ये है कि मैम के नोट्स बहुत अच्छे हैं ठीक है वो आपको एक फाउंडेशनल लर्निंग देते हैं एंड इट विल मेक यू कंफर्टेबल इन द ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि जो भी उन्होंने डिटेल में चीजें दी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सो ऑलवेज आपका जो फाउंडेशन वाला जो चीज है ना पीएसआर में सो दैट शुड बी मैम्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पिलर कंटेंट ठीक है सेकेंड नाउ only reading ma'am's notes is not going to help you to get good marks okay it will help you to fetch 200 220 उस range में but to get 40 50 60 extra you will have to add some values in your notes some points in your notes so what would be those points so that is very important okay so first thing जो भी मैम के नोट्स है उसमें एडिशन कहाँ से करना ओके मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको ठीक है फॉर एन एग्जांपल वी आर रीडिंग वेस्टर्न थिंकर्स फ्रॉम द मैम्स ओके दैट्स फाइन you will not have to read any other book let me be very clear because people are reading lots of stuff for the western thinkers home okay
तो उस पे आपको कुछ ज्यादा रीड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको ना नोट्स बनाने हैं, माइक्रो वाले, माइक्रो वाले। अब माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं ये ध्यान रखना। जो मैम के नोट्स है उससे कीवर्ड्स निकालने हैं। ओके, ओके। तो वो एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। दूसरे आपके नोट्स होने चाहिए कौन से थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है और वो कंसेप्ट कौन सी बुक में है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया जनरल, व्हाट वी टेंड टू डू, वी टेंड टू राइट द डेफिनेशन गिवन बाय द एरिस्टोटल। ओके, वी टेंड टू राइट द डेफिनेशन गिवन बाय द एरिस्टोटल। सो अरिस्टोटल की डेफिनेशन लिखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ दिस। But that definition is given by Aristotle in his book Nicomachean Ethics. People only know the books of Aristotle or the books of any other thinker which is given in man's notes. ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो पीपल ओनली नो दोज बुक। नो, यू विल हैव टू गो बियॉन्ड वंस, लाइक मैम्स नोट्स के से ज्यादा आपको एक स्टेप, दो स्टेप आगे जाना होगा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जो भी दिया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल थियरी ऑफ रिवोल्यूशन हो गया, थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एरिस्टोटल का, या फिर कोई भी थियरी होगी, जैसे डेमोक्रेसी थियरी होगी, राइट्स की थियरी होगी, ठीक है। उनमें से जो भी थिंकर है, जैसे लेट मी एक्सप्लेन दिस विद दी अनदर एग्जांपल कि कम्युनिटेरियन कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स है थियरी ऑफ जस्टिस एंड थियरी ऑफ राइट्स की। ओके, सो दे आर माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, मैकिंटायर। ओके, तो उन्होंने कौन से बुक में उनकी थियरीज दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर दैट यू हैव दैट लिस्ट विद द नेम्स ऑफ द थिंकर्स। नेम लिखना है, उसके बाद उनके कौन से बुक लिखना है, और उस ब्रैकेट में, उस बुक के बाद ब्रैकेट में कौन सा कंसेप्ट उस बुक से दिया है वो लिखना है। इट विल हेल्प यू टू जनरेट अ क्रिस्प इंट्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन आ गया कि कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ, या फिर ऐसे आ गया कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, बराबर, तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल वॉल्जर ने किस बुक में दी है, तो यू विल स्टार्ट ना कि माइकल वॉल्जर हैज गिवन कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कॉन्सेप्ट और फिनोमेना इन दिस बुक। तो ये क्या करेगा आपको, ये ना, एक सेकेंड सर, इन लोगों को आप म्यूट कर सकते हो जो those who are unmute, because it's making noise. Who is this? EJ Singh. Hello, EJ Singh. Yeah, thank you. So yes, where was I? Yeah, नहीं यार, म्यूट करो यार। EJ Singh, who is this EJ Singh? Could you please mute yourself? Yes. हाँ, सो मैं ये बोल रहा था कि इसलिए तो जो जिसने भी कोई थियरी दी है या फिर कॉन्सेप्ट दिया है, तो किस बुक में दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वेस्टर्न थिंकर के लिए कौन सपोर्टर है और कौन क्रिटिक है उनका, और उनका क्या स्टेटमेंट है, उसके लिए एक सेपरेट नोट्स बनाओ, या फिर उसी नोट्स में जो आपके पहले वाले माइक्रो नोट्स है ना उसमें, ठीक है। तो वो ये दो टाइप के नोट्स हो गए। तो वैल्यू एडिशन आपको कौन सी करनी है, तो आपको क्रिटिक, सपोर्टर, उनके नाम, उन्होंने क्या कहा है, किस बुक में कहा है, और जो थिंकर्स है अपने, या फिर कोई भी साइंटिस्ट है हमारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, स्कॉलर, तो उसने कौन सा बुक दिया है, किसमें दिया है, वो डालना है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये दूसरा वैल्यू एडिशन जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वो ये चीज है कि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो दिए हैं, इन लोगों ने कहे हैं, वो रट्टा मारो उनको, क्योंकि वो जैसे कि तैसे आपको लिखने हैं आंसर्स में। somehow what we tend to do, we try to explain the things, बट कभी कभार ना आप कंक्लूड कर सकते हैं उनसे, ठीक है, कि एक साथ सपोर्टर है प्लेटो का, तो उसने सपोर्टर के बारे में क्या कहा है, समझ में आ रहा है। सो दोज काइंड ऑफ नोट्स शुड बी देयर विथ यू। ओके, तो वो एक चीज होगी।
अब दूसरी वैल्यू एडिशन कहां से करनी है? तो ओपी गोबा थेरीज, 6 थेरीज है हमारे पास। ओके, justice, rights, equality, democracy, power, state. So these 6 theories, सिर्फ वही थ्योरी के चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको ओपी गोवा से। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट हमने अगर मैम के नोट्स देखे वॉल्यूम के हिसाब से, तो हमें ये पता चलता है कि पेपर 1 में पार्ट ए में सबसे ज्यादा मैम ने दिए नोट्स वेस्टर्न थिंकर्स के। ओके, लगभग एक बुकलेट है पूरी। तो हमें क्या लगता है पता है, वेस्टर्न थिंकर्स आर सो लाइक इंपॉर्टेंट, बट नहीं। सबसे ज्यादा अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी ना पेपर 1 पार्ट ए में, तो वो है वेस्टर्न थिंकर्स। क्योंकि अगर पीवाई क्यूज जो थे सेकंड थीम है हमारी या पिलर है, अगर पीवाई क्यूज एनालिसिस करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इफ वी कंपेयर दी नोट्स ऑफ थियरीज विद द वेस्टर्न थिंकर्स, तो उसके 30% भी नहीं है थियरीज के नोट्स जो वेस्टर्न थिंकर्स के नोट्स है। बट लगभग 3 to 4 times ज्यादा थियरी से आते हैं क्वेश्चन। बट हम क्या करते हैं ना, वेस्टर्न थिंकर्स इतना रट्टा मारते हैं, इतना करते हैं, बट कुछ नहीं आता। सिर्फ 2-3 सवाल आते हैं थिंकर से, 2 या 3। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि हमें ज्यादा थेरीज पे ध्यान देना है। थेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो थेरीज जो 6 थेरीज है वो करने हैं आपको मैम के नोट्स प्लस ओपी गोबा। और ओपी गोबा से भी सिर्फ थेरी वाले ही चैप्टर पढ़ने हैं। 6 थेरी के 6 चैप्टर है और उसमें से एक एक्स्ट्रा ऐड है स्टेट वाला शायद। तो वही चैप्टर्स करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं पढ़ना वहां से। ठीक है। यस। अगर वेस्टर्न थिंकर्स में कोई इवेल्युएशन करना चाह रहा है, इफ समवन वांट्स टू सम लाइक कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करे, तो मुझे लगता है इग्नू, इग्नू के वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ो। लगभग 4 पेज के, 2 पेज के, 3 पेज के पर थिंकर नोट्स दिए उन्होंने। ठीक है, उसमें से एक दो पॉइंट्स आपको बहुत सी मिल जाएंगे, बहुत सी। तो इग्नू के नोट्स रेफर कर देना इफ यू हैव टाइम। लाइक अभी टाइम है अच्छी तरह से, सो यू कैन मेक नोट्स टिल दिसंबर। ओके, तो दिसंबर तक बहुत सही तरीके से हो जाएगा। तो वेस्टर्न थिंकर्स वहां से हो गया। थेरीज तो मैंने बता दिया मैम, और प्लस ये दूसरी आइडियोलॉजीज कहाँ पे भी नहीं जाना है मैम के नोट्स से सिवाय, सिर्फ मैम के नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिर्फ मैम के नोट्स पढ़ने हैं। ओके, तो ये चीज है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज कि डिसाइड कि आपको पेपर, एक पेपर में से कौन सा पार्ट आप स्ट्रांग हो और कौन सा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको। डिसाइड फर्स्ट कि वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 150 मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ दी बोथ दी पेपर्स। ओके, तो वो डिसाइड करो पहले, सो दैट यू कुड invest your energy and time in that particular section. What happens, people change their mind in the real examination कि नहीं यार, I'll choose part B, I'll choose part A just because of the questions, क्योंकि आपको सही लग रहे हैं वो क्वेश्चंस, आसान लग रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपको अगर चूज करना है ना, तो अभी चूज करना है कि पार्ट ए लिखना है या पार्ट बी लिखना है, कौन से भी पेपर में से। ठीक है। अब इफ यू हैव टू डिसाइड, देन डिसीजन क्या मैटर करता है ये देख लेना। जैसे चलता आ रहा है, बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन आल्सो, दैट यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए ऑफ द पेपर 1। तो पार्ट ए के 150 करोगे ना, तो ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिलेबस इज स्टैटिक, you will not have to add anything from the current affairs. And if there is a scope to add some current affairs topics or some current affairs points, it's very minuscule, बहुत छोटा है। कभी कभार रिलेवेंस पूछ लेंगे ना वो किसी चीज का, तो वो बहुत छोटा है। और उस रिलेवेंस में भी ऐसे करंट अफेयर्स, मतलब पिछले महीने के करंट अफेयर्स से नहीं आता, 10-15 साल वाला चीज है ना कंटेम्प्रेरी, तो उसमें आता है। सो यू कैन एड दोज पॉइंट्स। तो वो पहली चीज है। दूसरी चीज, पेपर 1 के सेक्शन बी में क्या होता है, पार्ट बी में क्या होता है ना, वी टेंड टू राइट जनरल आंसर्स एंड स्टिल थिंक कि नो वी शुड गेट गुड मार्क्स इन दी पार्ट बी, क्योंकि हमारा पॉलिटी GS2 थोड़ा ओवरलैप होता है ना उससे। एंड वी हैव आल्सो रेड लक्ष्मीकांत फॉर दी प्रीलिम्स,
तो हम क्या करते हैं ना, कोई सवाल आना तो बहुत जनरलाइज आंसर लिखते हैं। बट लिसन टू दिस कि ऑप्शनल में बहुत स्पेशल एंड डेप्थ वाली रीडिंग चाहिए, ये हमेशा याद रखना। यू कैन नॉट फॉलो जीएस वाला अप्रोच इन द ऑप्शनल, नॉट एट ऑल, नेवर। क्योंकि फिर आप अगर जीएस वाला अप्रोच अगर फॉलो करोगे तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू विल बी होवरिंग अराउंड 2020 और 2010, और फिर अब आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे स्कोर नहीं आ रहा। सो इट्स बेटर टू मेक योर स्ट्रेटेजी फॉर द ऑप्शनल स्पेशल, बहुत स्पेसिफिक और इन डेप्थ वाली। ओके, ठीक है। तो वो चेक कर लेना पार्ट ए अच्छा है पार्ट बी। अब पेपर टू में क्या होता है ना, पीपल बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यार पार्ट बी में अच्छा स्कोर आता है, आईआर है वगैरह वगैरह। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि अनलाइक पेपर वन, पेपर टू का पार्ट बी इज डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ए। until and unless you do not prepare part A well, you cannot write good answers of the part B. Okay, so ये दिमाग में निकाल दो। If you have that kind of thought ना कि part A is different than the part B, like paper one in paper two, no, part B is dependent on the part A, paper two वाला। क्यों है? क्योंकि जो theories दी है ना IR वाली, लिबरल थेरी, रियलिस्ट थेरी, देन कम्युनिस्ट वाली, सोशलिस्ट वाली, फंक्शनलिस्ट वाली, जो भी थेरीज दी है वो जैसे कि तैसे आपको यूज करना है वाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ पार्ट बी। ठीक है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द इंडो चाइना रिलेशंस, एंड आपको पूछा जाता है कि हाउ कुड दे इंप्रूव, लाइक रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। सो यू कुड यूज the structural functional approach या फिर functionalist approach of the liberalism in the आंसर। तो आप लिख सकते हो कि we must start from the थोड़े थोड़े चीजों में, थोड़े थोड़े सेक्टर्स में आपको काम करना है, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले रिकमेंडेशंस में यू हैव टू यूज दी theories again to explain some relations like Indo-China relations, Indo-Pak relations. You will have to use foundational learnings which you have got from the party. तो वो theories वाले हो गए, then international organizations से हो गए। ओके, सो आपका पार्ट बी डिपेंड है पार्ट ए पे। तो जब तक आप पार्ट ए अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको पार्ट बी के आंसर्स नहीं लिखने आएंगे अच्छे। ओके, तो वो चीज याद रखना। दूसरी चीज मुझे लगती है ना कि और एक इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू एडिशन कहाँ से करनी है, तो वो है न्यूज़पेपर्स। और मैं रिकमेंड करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में ना इंडियन गवर्नेंस वाला भी पार्ट, मतलब पार्ट बी भी कवर हो जाता है पेपर वन का, ठीक है, आईजीपी वाला, और आईआर भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड, एंड दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। इट्स नॉट दैट कि यू इफ यू आर फॉलोइंग द हिंदू देन यू शुड stop reading the Hindu and then start Indian Express. But my personal recommendation is read Indian Express so that you could add the no points from for both the papers. Like paper one के part B के लिए use होगा उसका, along with that paper two के लिए भी use होगा। Okay, so that's why I recommend Indian Express. Second thing, जो भी पर्सनल बाकी वाले, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ वैल्यू एडिशन करनी है नोट्स में करंट अफेयर्स से, तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे डिपेंड मत रहना। यूट्यूब पे ना कुछ स्पीचेस, जैसे जयशंकर जी जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके स्पीचेस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं। तो जब भी कोई समिट होती है ना, तो कोई ना कोई तो जैसे डिफरेंट फर्स्ट पोस्ट है, देन डिफरेंट मीडिया हाउसेस है, तो वो क्या करते हैं ना, वो उनके स्पीचेस, उनके इंटरव्यूज, उनके पॉडकास्ट वो डाल देते हैं यूट्यूब पे। तो वो सुन लेना कि हमारे फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी का इंटरव्यू हो गया, देन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के इंटरव्यूज या स्पीचेस हो गए, देन आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
उनके कुछ स्पीचेस हो गए, उनके स्टेटमेंट्स हो गए, मीडिया ब्रीफिंग। तो हमेशा ना वो 1.5 2 घंटे वाले होते हैं ना स्पीचेस, या 1 1.5 घंटे वाला इंटरव्यू, वो सुन लेना। दे विल हेल्प यू लाइक नथिंग। तो इतना हेल्प करेंगे ना आपको कि वो जो कीवर्ड्स है ना आईआर वाले लैंग्वेज, वो आपके लिए आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, वो हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल साइंस अपने ऑप्शनल में, वो है लैंग्वेज। वो कैपिटल बोल्ड में लिख लेना। क्योंकि क्या होता है ना, व्हाट व्हाट वी टेंड टू डू, वी टेंड टू राइट आंसर्स इन अवर ओन लैंग्वेज। हमें जो एक्सप्लेन हुआ है ना, हमें जो लर्निंग है, हमें जो समझा है ना, उसमें। बट डू नॉट डू दैट। Even if you're learning or you're studying or preparing for some topic, always prepare in the political science वाला language। उसके keywords ढूंढो। उसके keywords बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक के लिए, कि किसने क्या कहा है। ओके, जैसे जेएस मिल को क्या बोलते हैं, रिलक्टेंट डेमोक्रेट। ओके, सो हम रिलक्टेंट डेमोक्रेट को अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। सो जो कीवर्ड्स है ना सबको डिनोट करने के लिए, तो वही यूज करना है। उसने वो जो कहा है, उसी कीवर्ड्स को करने हैं। आगे वक्त पीछे वाली चीजें बदल जाएगी, बट यू ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ वेल वाइल डूइंग एनी टॉपिक फ्रॉम द पीएसआर। तो ऑलवेज फोकस ऑन दोस कीवर्ड्स। ओके, और मैम के नोट्स ना वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं, लाइन टू लाइन पढ़ने हैं। और यही चीज रहेगी मेंस के फेज में भी, कि आपको तभी जाके वो लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी। वरना सिर्फ आप माइक्रो नोट्स ही पढ़ोगे तो नहीं आएगी। माइक्रो नोट्स किस लिए है, वो आखिर वाले 5, मतलब 1 2 दिन के लिए है जब एग्जाम होगी। लेकिन वो 5 दिन की छुट्टी मिलती है ना ऑप्शनल में, उसमें भी आपको लाइन टू लाइन ही पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना है। क्यों, क्या होता है, जीएस पेपर्स हो गए होते हैं ना, तो आपको जीएस वाली ही ज्यादा माइंडसेट हो गया होता है, पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, बट आवर ऑप्शनल रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच। आपने ना पैराज में आंसर्स लिखने हैं, बहुत कम बारी ना पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं ऑप्शनल के। तो ये ध्यान से निकालो कि आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, बिल्कुल नहीं। पॉइंटर्स में लिखने जाओगे डेप्थ नहीं आएगी। अगर डेप्थ नहीं आएगी ना, तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो हमें रट्टा मारना है कब, जब आखिर वाले 1 2 दिन हैं, जैसे लैंग्वेज के पेपर हो गए, देन यू हैव टू रिवाइज, देन वो माइक्रो नोट्स के यूज करने हैं। ठीक है, उस 5 दिन में माइक्रो नोट्स नहीं यूज करने हैं आपको। उस टाइम आपको पढ़ना मैम के नोट्स ही, या फिर वैल्यू एडिशन जो भी किया है वही से। ओके, क्योंकि टू बिल्ड द फ्लो, फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑप्शनल। अगर फ्लो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इवन दो यू मिस सम पॉइंट्स, इट वुड बी फाइन, बट नेवर एवर, नेवर एवर मिस द फ्लो। अगर हम फ्लो मिस कर दोगे ना आंसर्स में, तो कुछ नहीं होगा। पहला पैरा दूसरे पैरा से कुछ लिंक नहीं है, दूसरा पैरा तीसरा पैरा से कुछ लिंक नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो वो चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कंटेंट वाला पार्ट, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से क्या करना है हमें, ऑप्शनल में हमेशा याद रखना, जो भी स्टैटिक वाला पार्ट है ना, उसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बहुत रिपीट होते हैं। मतलब ऑप्शनल के क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी आप स्टैटिक पार्ट से कर दोगे ना, तो भी सफिशिएंट है, उतनी ही पढ़ाई करो बस। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक फ्रेमवर्क्स एंड टेम्पलेट्स रेडीमेड। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इंट्रोज और कंक्लूजन्स रेडीमेड रखे थे इन टेम्पलेट्स के लिए, और मैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स डालूंगा वो मैंने रेडीमेड कर दिया था। अगर मैकियावेली की इस थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास वो रेडीमेड इंट्रो थी। ठीक है, कौटिल्य के स्टेट क्राफ्ट पे कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर थ्योरी ऑफ स्टेट पे आता है, तो मेरे पास एक रेडीमेड रेडीमेड कंक्लूजन था। ओके, तो ये चीजें मैंने फॉलो की थी, तो वो फॉलो दैट, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम इन द ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो रेडीमेड इंट्रो रेडीमेड कंक्लूजन करने हैं, जो भी रिपीटेटिव थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन पे। और फ्लो भी लिख लेना एक पेज पे। ठीक है, कि ये फ्लो क्या करूंगा, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर नोट्स निकालोगे तो सही होगा। ओके, जो थीम्स के क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन इसी सिंगल पेज पे इंट्रो लिख लेना,
कंक्लूजन लिख लिया ना, और बीच की बॉडी में लिख लेना कि मैं फ्लो कैसे कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगा। ओके, तो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स बना लेना उन रिपीटेड थीम्स पे। दूसरी चीज, हमें क्या करना है पीवाईक्यूज एनालिसिस करके। पीवाईक्यूज एनालिसिस करके हमें ये चीज करनी है कि वेटेज कौन से टॉपिक को कितना है आपको पता चल जाए। जैसे मैंने बताया ना, थियरीज को सबसे ज्यादा वेटेज है पेपर 1 पार्ट ए में। बट व्हाट वी टेंड टू डू, वी टेंड टू गिव मोर टाइम फॉर द वेस्टर्न थिंकर्स, जिसमें 20 25 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अवॉइड दैट। ओके, तो वो वेटेज पता करो। जैसे पार्ट ए का क्या है वेटेज, सबसे इंपॉर्टेंट थेरीज है, दूसरा आइडियोलॉजीज है, तीसरा वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में ही 1 महीना लगा देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उसको 1 1.5 महीना करने की। बुकलेट भले ही बड़ी हो, उसको फास्ट कंप्लीट करो। ठीक है, सेम विथ पार्ट बी, सेम विथ पेपर 2 के पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको वेटेज निकालना है कि कितना किसको आ रहा है। ओके, तो वो एनालिसिस कर देना। और तीसरी चीज, मैं ये चाहता हूं कि जो रिपीटेड थीम्स है उनके आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, प्रॉपर लिख लो, प्रैक्टिस करो इसको लिखने की। एक नोटबुक बनाओ अच्छे से, उसमें पीवाईक्यूज आंसर राइटिंग लिख लो, और हर रोज 3 से 4 5 क्वेश्चंस लिख लो हर रोज। अगर वो एक टॉपिक बन रहा है, टॉपिक अच्छे से रीड कर रहे हो, तो उसके बाद सेकेंड रीडिंग के टाइम आप लिख लो क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो दिसंबर तक हमारा प्लान वही चाहिए कि हमें नोट्स कंप्लीट करने हैं खुद के, रीडिंग कंप्लीट करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है जो भी मैंने बताया उससे, और चौथी चीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जब एक कंप्लीट रीडिंग हो जाए ना प्रॉपर, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज के साथ। ओके, पीवाईक्यूज देख लो आप, ठीक है देख लो, क्योंकि क्या है ना, कभी कभार आपको ये चीज पता नहीं चलती कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो वो सेकंड रीडिंग से पहले देख लेना पीवाईक्यूज कि कौन से टॉपिक से कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। पहले रीडिंग में बिल्कुल मत देखो, पहली रीडिंग ना ऐसे जैसे किसी कोर्स लगाया आपने, या फिर कोई आप जैसे हम स्कूल में थे, स्कूल में हमेशा लिखना नहीं होता ना, एग्जाम 6 मंथ्स के बाद होता है जब सिलेबस कंप्लीट होता है। तो उस टाइप की रीडिंग करना नोट्स की। उसके बाद पीवाईक्यूज देख लेना बिफोर सेकेंड रीडिंग कि कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जैसे मैं आज प्लेटो पढ़ने वाला हूँ, सो गो थ्रू द पीवाईक्यूज कि ऑन विच टॉपिक्स वो प्लेटो से पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। ठीक है, तो प्लेटो से ये चीज पूछ रहे हैं, तो यू विल फोकस ऑन दैट मोर while डूइंग सेकेंड रीडिंग। ओके, और सेकेंड रीडिंग के बाद मतलब उस टॉपिक के पढ़ने के बाद आप वो थीम्स पे क्वेश्चंस आंसर्स लिख लो सेकेंड रीडिंग में, ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग ही। ठीक है, और जब सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो प्रैक्टिस लिखने की हो जाएगी, स्टार्ट राइटिंग दी सेक्शनल टेस्ट। पार्ट ए के थिंकर्स पे लिख लिया आज, या फिर थियरीज पे लिख लिया। ओके, टारगेट दिसंबर तक आपको सेक्शनल टेस्ट 8 और 4 फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं ऑप्शनल, मिनिमम 8 सेक्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू इन डिटेल रिकमेंडेशन कि इफ यू हैव चूजन पार्ट ए एज योर 150 वाला थिंग, कि मैं 150 मार्क्स इस पार्ट ए से करूंगा या करूंगी, देन गिव 3 सेक्शनल टेस्ट फ्रॉम दैट पार्ट। ठीक है, 2 से 2 में मत रुकना। तो पार्ट ए की 3 हो गए, पार्ट बी की 1 या 2 होगी बस। ठीक है, सेम विथ पेपर सेकेंड। पेपर सेकंड में कौन सा पार्ट ए करने वाले हो, पार्ट बी करने वाले हो, 150 वाला अटेम्प्ट, तो उसमें से आप 3 सेक्शनल लिख लेना, और दूसरे में से 1 या 2 लिख लेना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो सेक्शनल है ना पीवाईक्यूज वाले टेस्ट या फिर सेक्शनल वाले टेस्ट, तो उससे जिसमें आप 150 मार्क्स में लिखने वाले हो वो ज्यादा कवर होगा अच्छे से। ओके, और फुल लेंथ लिखने हमें 4 पर पेपर 2। तो ये दिसंबर तक का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो दिसंबर तक हमारे ये तीनों पिलर्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, एंड वी हैव टाइम। हमेशा याद रखना ये 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन चाहिए, तो ये 6 महीना बहुत मेहनत करेंगे, तगड़ी बात।
सो दैट आप उन मेंस के फेज में ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगे, बहुत क्लियर होगे, बहुत फोकस्ड होगे। ठीक है, तो जो भी करना है इस 6 महीने में एफर्ट्स डालो, जितना डालना है उतना डाल दो। ठीक है। और दूसरी चीज, कोई ऑप्शनल का बंदा या बंदी होगी आपके साथ जो बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है, तो उनके साथ डिस्कशन करो कुछ कुछ टॉपिक्स पे। ओके, जैसे आईआर, आईआर का डिस्कशन करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आईआर के डिस्कशन से ना बहुत वाइड हमारा एरिया ओपन हो जाता है एंड इट विल हेल्प यू। तो पेपर 2 का आईआर वाला पार्ट डिस्कशन बहुत सही करना, क्योंकि उससे ना हमें लैंग्वेज आती है, थोड़े न्यू डायमेंशंस खुलते हैं। ठीक है, तो ये, और जो भी करंट अफेयर्स की बुकलेट होगी ना, जैसे विजन पीटी होगा, मेंस 365 होगा, तो उससे ना कुछ कुछ कोऑपरेशन वाले पॉइंट्स एंड कंसर्न वाले पॉइंट्स के एग्जांपल्स निकालने हैं। क्या होता है, हमें पता है एटॉमिक रिलेशन है हमारा, एटॉमिक कोऑपरेशन वाला, जैसे इंडो बांग्लादेश। तो हमें क्या होता है ना, हमें पता है कि एक रिएक्टर हमने वहां पे बिठाया है, बट वो रूपर वाला ना पता नहीं होते, नाम नहीं याद है। तो वैसे ही ना सेम रेल लिंक, हमें पता है रेल लिंक है, लेकिन कौन सी रेल लिंक है, तो उसके एग्जांपल्स ना विजन से मिल जाएंगे आप, करंट अफेयर्स। ओके, यस, दैट शुड बी दी स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब आखिरी वाली स्ट्रैटेजी, आखिरी वाली चीज मैं बोल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे बताई नहीं है, वो है टॉपर्स कॉपीज। ठीक है, तो चूज 2 और 3 टॉपर्स, जैसे मैंने मेंस के लिए भी बताया था ना कि 2 या 3। तो आपको क्या करना है पता है, उनके आखिरी वाले अटेम्प्ट में, जैसे जिस अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, उससे पहले उन्होंने 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो भी आंसर्स लिखे हैं उसके बुकलेट्स, जैसे शुभ्रा मैम के या जीएस स्कोर पे आपको मिल जाएंगे वो टॉपर्स, या फिर किसी भी क्लास पे, तो वो उसी अटेम्प्ट में लिखे हुए आंसर्स चाहिए। क्या होता है ना 2020, अब जैसे 2024 का रिजल्ट लग गया, तो व्हाट क्लासेस डू, दे पब्लिश द आंसर कॉपीज टॉपर्स हैव रिटन इन द 2022, 23, 21, सो दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जिस अटेम्प्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए उसी अटेम्प्ट के कॉपीज आपको ढूंढनी है। ओके, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उसके हार्ड कॉपीज निकालनी, उस कॉपी, टॉपर्स कॉपीज की। और हार्ड कॉपी निकालने के बाद ना, जो साइड मार्जिन होता है उस आंसर्स में, तो वो आपका आंसर लिखना है उसमें रफ में। आपका आंसर कैसे स्ट्रक्ट कर सकते हो, कौन से पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, एंड देन ट्राई टू मैच, ट्राई टू कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर्स आंसर। वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट। और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है, बहुत। हार्ड कॉपीज निकालना, साइड मार्जिन में रफली स्ट्रक्चर करना, ऐसे ऐसे लिखूंगा, वैसे वैसे लिखूंगा, तो वो रफ पूरा आंसर लिख देता मैं। देन आई रीड, आई यूज टू रीड द टॉपर्स आंसर, देन आई यूज टू कंपेयर कि कौन सी वैल्यू एडिशन मैंने की है और कौन सी मेरे से मिस हुई है, पता है। सो उससे ना एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर आ जाएगा, टॉपर्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा और आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड होगा। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जो मेरा फाउंडेशन हुआ है ना पीएसआर में, सो इसी एक्सरसाइज से हुआ है, मैं बता रहा हूँ। टॉपर्स कॉपीज, उसकी हार्ड कॉपीज और साइड मार्जिन में रफली प्रैक्टिस करना, देन ट्राइंग टू कंपेयर द आंसर्स ऑफ सेल्फ एज वेल एज टॉपर्स। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फ्लो में गलत जा रहे हो, इंट्रो में गलत जा रहे हो, या फिर मेन बॉडी में कुछ रह रहा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, लैंग्वेज में फ्लो है या नहीं है। सो ऑल द issues, all the concerns, if you're facing or you're unable to identify, this exercise will help you to do that. Okay? Yes. So that should be the strategy. कोई है जो डाउट है किसी तो पूछ लेना। Sir, हाँ, यस निधि। I spoke to you in September, या, and but it was too late. So that was my first attempt, and I यस, couldn't clear mains. यस, But I had some questions. For example, अगर हम कोई थिंकर है, उनके कोई टॉपिक से हमें अगर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देने हैं, जैसे मार्क्स का एलियनेशन हो गया,
So where did you get that contemporary examples from? या surplus value profit हो गया? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैम के नोट्स में तो एग्जांपल्स नहीं दिए, सिर्फ थ्योरी दी है। ओके, अब ना वो अंडरस्टैंड करो अच्छे से। ओके, अब मुझे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि क्या है ना, अब एलिनेशन का हो गया। आप अगर देख रहे हो ना, तो आजकल यूथ कितना एलिनेट है, बहुत नेक्स्ट लेवल। कि आइसोलेशन में इंडिविजुअलिज्म इतनी बढ़ गई है। क्यों? ड्यू टू स्मार्टफोन्स। ओके, वो स्मार्टफोन्स अलोंग विथ जनरेटिव एआई क्या हो रहा है, वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस मार रहा है। ठीक है, वही तो फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन है ना उस थियरी ऑफ एलिनेशन का, कि इट डिस्ट्रॉयज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस एंड इट ओनली फोकसेस ऑन गिविंग व्हाट मार्केट्स वांट। जो मार्केट्स है ना डिफरेंट, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उसी से हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना कि हमारी क्रिएटिविटी से और इनोवेटिवनेस से। तो वो एलिनेशन हो गया कि फिर मेंटल इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, देन सोशल कैपिटल डिक्लाइन हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं ना आसपास कि एक्सीडेंट्स हो गए या फिर कोई इशू हो गया, तो पीपल ट्राई टू video record these incidents rather than going for the help. So these kind of attitude shape हो रहे because of alienation. तो उस हिसाब से उसको लिंक कर देना। ठीक है, और ये तुम्हारी ना, मैं ये मतलब हमेशा मेरी ये थॉट प्रोसेस रही है कि आ, जब आप किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझोगे ना, देन आपको ना ज्यादा एग्जांपल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं पे। लुक एट सराउंडिंग्स, देख लो आपकी, उसी में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे अच्छी तरह से। तो वो एक कॉमन सेंस या फिर हम बोल सकते हैं ना एक जनरल सेंस हमें डेवलप करनी। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो और ट्राई टू अप्लाई। जैसे आप अभी बैठे हो तो ऐसे ही सोच रहे हो कि यार सरप्लस का तो इस यहाँ यहाँ दिया था, तो सरप्लस का कहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो सरप्लस का हम ऑक्सफैम के इनइक्वालिटी रिपोर्ट से बता सकते हैं। हाँ यार, ये इन विद इन दीज लास्ट 2 years जो भी टॉप रिचेस्ट 1% है, उनकी इनकम उन्होंने इतनी इतने से बढ़ाई है, वेदर बॉटम 40% से बड़ी नहीं है। ठीक है, और वही इनकम फिर से ऐड हो रही है यहाँ पे। तो वो ग्लोबलाइजेशन से लिंक करो। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो यार कि पार्ट ए पढ़ रहा हूं मैं पेपर 1 का, सो आई कैन नॉट गिव एग्जांपल्स फ्रॉम पेपर 2 वाला पार्ट बी से। हमेशा इंटरलिंक करो। पेपर 1 के एग्जांपल्स पेपर 2 में दे दो, पेपर 2 के पेपर 1 में दे दो, पार्ट ए के बी में दे दो, बी के पार्ट के ए में दे दो। तो कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन मत करो while writing the answers. Okay, try to interlink all the things. Yes. Sir, also, since my content is done, so for the next 6 months, like I'm very much thorough with the content because I realized before my mains ka result that optional has been my weak point. So what Yes. should be the strategy now? You said something ना वो toppers copy. So मैं हाँ, topper के questions जो upload किए शुभ्रा मैम के यहाँ पे, I see it, I write answers and then I take a red pen and I actually write it, and that's actually helping me a lot. So should I continue that? यस, मैं ये बोलता हूँ अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो मैंने सेकेंड रीडिंग में चीज बोली थी ना, PYQs आंसर राइटिंग, सो वो चीज करो। अभी भी रीड करना है हमें, तो हमें क्या करना है, बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, रीड दी PYQs। ओके, कि जैसे मैं आज वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ने वाला हूँ, वेस्टर्न थिंकर्स का प्लेटो पढ़ने वाला हूँ। तो प्लेटो और अरिस्टोटल, या मैं क्या बोलूँ, ये 3 अगर थिंकर्स कर रहे हो, तो इन 3 थिंकर्स के कौन से क्वेश्चन आए हैं जो लास्ट 5-6 सालों में, ठीक है, या फिर 8-10 सालों में, या फिर वो यार PS लेजिस्लेचर कुछ तो एक है यार क्लास, वो हमेशा 20-25 सालों के पेपर्स देते हैं प्रॉपर एनालिसिस के हुए, प्लेटो के सेपरेट, अरिस्टोटल के सेपरेट, तो है वो कुछ तो डॉक्यूमेंट तो मिल जाते हैं वो ऑनलाइन। अगर पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज PYQs निकालेंगे ना, वो तो PDF आती है, तो वो 100 रुपए या 150 रुपए में मिल जाती है वो PDF। ठीक है, वो ले लेना। तो उससे क्या होगा ना, PYQs उस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर वो PYQs देख लोगे ना, सो यू विल रियलाइज कि दीज आर द थिंग्स which are repeating from this particular topic. So you will start focusing on that while reading. Okay, then you will be done with your topic reading. Then write the PYQs जो भी तुमने उस टॉपिक के पढ़े हुए हैं ना, उस रिपीटेटिव थीम्स के। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
आज तुमने प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ लिया, ठीक है, तो प्लेटो और अरिस्टोटल के 4 क्वेश्चन तुमने लिखने हैं। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, प्लेटो में से वो 2 सवाल चूज करने हैं जिस पे रिपीटेटिवली थीम्स पे क्वेश्चन आया है। जैसे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हो गया प्लेटो वाला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग हो गया। तो उस पे अगर सवाल आ रहे हैं ना रिपीटेटिवली, तो वो 2 सवाल ले लो। सेम विथ अरिस्टोटल, जो रिपीटेटिव बेस पे आ रहे हैं वो 2 सवाल ले लो, और वो 4 सवाल के आंसर्स लिख ले। ठीक है, वो चीज होगी। और दूसरी चीज, टॉपस कॉपीज वाली, तो टॉपस कॉपी ले लो, ठीक है, उसके उसने वो जिस सवालों के आंसर्स लिखे हैं वो आंसर पढ़ो मत, तुम्हें क्या आ रहा है ना उस पे तुम कैसे लिखोगे वो साइड मार्जिन में लिख लेना, एंड देन कंपेयर। तब टॉपर्स का आंसर पढ़ लेना, एंड देन कंपेयर कि यार टॉपर्स मतलब उस टॉपर ने ये लिखा है और मैंने ये लिखा है, तो अगर डायरेक्शन गलत जा रही है तो पता चलेगा, कंटेंट में इशू है तो पता चलेगा, लैंग्वेज में या फ्लो में कुछ इशू है वो पता चल जाएगा, या फिर कुछ रट्टा मारने का जो है ना, कोई थिंकर सपोर्टर उनका नाम या फिर कोई बुक नेम, तो वो चीज पता चल जाएगी। तो यू विल आइडेंटिफाई योर लैकुनाज एंड स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो चीज प्रैक्टिस से हो जाएगी। ओके, एंड फिर 2-2.5 महीने के बाद जब सितंबर में पेपर होने वाले हैं ना, या अगस्त में, तो वो हाँ, तो अगस्त के एंड में तुम्हें लिखने हैं प्रॉपर ऑप्शनल के वो 2 पेपर, ये टारगेट रख लेना तुम, ठीक है। और मैं तो ये चाहता हूँ ना IR डेली कर लो, सच में। इंडो अमेरिका आज कर लिया, देन इंडो चाइना कल कर लिया, देन इंडो रशिया कल कर लिया, तो मतलब एक एक दिन ना IR का एक एक टॉपिक उठाओ और उसमें उसके लिए आधा एक घंटा अलॉट किया करो। तो उससे कोई भी रिलेटेड नेट पे डाल देना, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो सर्च कर लेना उन चीजों को, तो उससे ना वैल्यू एडिशन नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे तुम्हारे। और ना हर एक बायोलैटरल रिलेशन के लिए 2 पेजेस नोट्स चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 पेजेस। उसमें सब आएगा, कौन सा थिंकर क्या बोल रहा है, कौन सा डिप्लोमेट क्या बोल रहा है, कौन सा कमिश्नर क्या बोल रहा है, कौन सा फॉरेन एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। उसमें कॉपरेशन के एरियाज होंगे, इश्यूज के एरियाज होंगे, इवोल्यूशन होगा, कैसे आ रहा है रिलेशन अब तक का, ठीक है, एंड वे फॉरवर्ड होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो वो वैसे वाले 2 पेज में नोट्स बना लेना मैक्सिमम। Okay, sir. And one last question. You said you scored 300 plus in one of your attempts. What was unique according to you in that paper? Were you more prepared, or was it the ऑथेंटिसिटी, बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट था मेरे पास उस अटेम्प्ट में, बहुत। जैसे मैं वही बोलता हूँ ना कि यार उतना नेचुरल मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ फिर मेरे बाद वाले अटेम्प्ट्स में। क्योंकि क्या हुआ ना, जब मैंने GS पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा माइंड सेट है ना थोड़ा ब्लर होने लगा। मतलब मैं फिर मतलब क्या है ना, जब आप पॉइंटर्स में सोचते हो ना, डेटा पॉइंट्स, अब GS के आंसर्स आपको पॉइंट में लिखने होते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस आप इतना शेप करते हो ना, इतना प्रैक्टिस करके बार 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 बार, तो वो ना थॉट प्रोसेस जो नेचुरल वाला ऑर्गेनिक वाला थॉट प्रोसेस होता है ना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एसे एंड ऑप्शनल, वो थोड़ा हार्म होता है। क्योंकि फिर आपकी थॉट प्रोसेस ज्यादा पॉइंट्स में ही सोचने लगती है ना, तो वो फ्लो जो होता है ना, नेचुरल फ्लो, ऑर्गेनिक फ्लो, तो वो नहीं आता, वो थोड़ा चला गया यार मेरे लेटर अटेम्प्ट्स में। और वैसे भी अभी ऑप्शनल को तो बहुत स्किम कर रहे हैं गंदी तरह से, मतलब स्केलिंग बहुत हो रहा है उसका, स्केलिंग PSR का भी बहुत स्केलिंग हो रहा है 2-3 सालों से, और इस बार भी बहुत स्केलिंग हुआ है। तो उसकी वजह से 10-15 मार्क, वैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, 280-290 प्लस दिस ईयर, बट कुडंट गेट। सो मेरा ये मानना है कि यार बी वेरी ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, किसी को कॉपी मत करो, ऐसे लिखो जैसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत सही लिखे हो। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मत यूज करो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का कुछ नहीं होने वाला। आपको ये पढ़ने के बाद ऐसे लगे यार ये जनरेटिव AI ने आंसर लिखा है क्या, नहीं, थोड़ा चाहिए उसमें, थोड़ा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके, यस, Thank you so much, sir. यस, एनीवन एल्स? Hello, sir.
Can I Just speak wait, something? Anupama. Yeah, Anupama. Yeah, go ahead. Go ahead. Sir, you mentioned about studying the codes as well as maintaining the political science language. How important is that for our paper? Because I'm a person who just if you miss an adjective, if I'm missing an adjective, I'll be forgetting the whole thing. So I won't be a person who will be used to writing these codes as such mentioned by you author or a thinker. I will be so bad at it. So I just wanted to focus on which paper, which is it is very important. No, in my opinion, we should focus on the papers which are static, so that our preparation would be limited. And if we are focusing on the parts where the current affairs, and then it's very dynamic, so there we are going wrong. So first of all, but again, it's my personal opinion. Find your strength. Okay. Second thing is, you have said that I'm not good at this, remembering or recalling the stats and all. But with the answer writing practice, because you are going to read that particular topic, that particular thinker, those statements for several times, 6 to 7 times. Because till December, you'll be reading the uh, notes for 3 to 4 times. During mains phase, again 3 to 4 times. So you'll be reading those things for several times. Okay. And then you'll start realizing that these are some topics or these are some points which have gone to longer memory. So there is no need to memorize those things. And तुम्हें फिर पता चलेगा कि these are some points which I have to recall properly. Then you will start making notes of those. कि यार पूरे सिलेबस में से, पूरे टॉपिक में से ना, फिर थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जिसको मुझे मेमोराइज करना है, जिसको मुझे रट्टा मारना है. ओके. क्योंकि क्या होता है ना, हम पहले रीडिंग में सोचते हैं कि हाउ कुड वी मेक नोट्स फ्रॉम, बट दैट वुड नॉट बी द केस आफ्टर 2 or 3 रीडिंग्स. ओके. क्योंकि थिंग्स विल गेट सेटल डाउन. आपको फ्लो पता होगा कि वाई प्लेटो हैज गिवन theory of communism, because Plato को पता था कि his state, Athens, is divided into 2 cities. So there were 2 cities within a single city: city of rich, city of poor. Poor were ignorant, rich were arrogant. So to find a middle path, he had given the theory of philosopher king. But even like he said कि लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा ग्रीडी होते हैं all, और उसने उसमें theory of souls जो देते हैं ना, 3 types of souls, तो उसने बताया था कि those people who are reasonable, those there are some people have control, who have control over their appetite. So उससे क्या होगा, तो ये चीज होगी. अगर auxiliary ruling class में जाओगे, then you will have to control your greed. So that's why we must make property of a family सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं होनी चाहिए. क्योंकि उससे क्या होगा, दे पीपल विल फोकस ऑन रूलिंग रादर देन गेटिंग. समझ में आ रहा है? तो सेल्फिशनेस कंट्रोल में आ सकता है. सो दोज वेर दी थिंग्स विच प्लेटो सेड. तो उसका अगर फ्लो ठीक से पढ़ोगे ना, तो यू विल नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग. बस उसमें आपको एक ही चीज सोचनी है कि थियरी ऑफ कम्युनिज्म के लिए सपोर्ट किसने किया प्लाटो के, और क्रिटिक किसने किया. ठीक है. फिर थियरी ऑफ कम्युनिज्म आप अच्छी तरह से समझ जाओगे आफ्टर सेवरल रीडिंग्स. तो उसमें आपको कोई जरूरत नहीं होगी याद रखने की, सिर्फ याद रखने की जरूरत होगी जो भी आपको रट्टा मारना है. ओके. Yeah, sir. The finding templates and going according to that is kind of fine. Interlinking the Yeah. concepts. But is Yeah. there any like value addition which is compulsory if we are studying like word by word rote learning of some That is what codes I'm or saying. something? Yeah. The value addition or the extra marks you will get from other students would be, first of all, those keywords which I have emphasized on. Second thing is the books names. जो भी थिंकर ने जिस बुक से वो थ्योरी उठाई है, किस बुक से दिया है. ओके. देन सेकंड वन इज फ्लो. थर्ड वन इज फ्लो. मेंटेन द फ्लो. भाड़ में जा. अगर इफ यू कांट
replicate the names all together, and you are not good at that. So make sure that you are good at flow. अगर फ्लो में नहीं होगे ना, तो आपको दो साइड में से एक तो कौन सी तो साइड चूज करनी पड़ेगी. एक तो replicating the names, proper keywords, proper things, या फिर फ्लो. तो मैं तो हमेशा इंटरमिक्स के बारे में बोलता हूं कि ये भी थोड़ा कर लो, ये भी ज्यादा कर लो, लेकिन फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. पीएसआर, without flow you cannot get good marks. That's it, period. Okay. Yes. So one last thing, I'm currently in Kerala, so I'm planning to join an answer writing program which is in Trivandrum itself. Uh, so do you think is there a good strategy? They will be having these weekly tests and weekly portions to complete, and or do you prefer that I should take some other test series which is good at PSI or like Subramanian's test series or something? Now Or it depends on the quality of evaluation and the recommendations they are providing to you, because as I'm not aware of the institution you have joined for the PSR, or you thinking to join. So one thing is that, so make sure any institution, whether it is Shubhra ma'am's or any other private institution or any other mentorship program, any other or anything, make sure that program must address the purpose you're looking for. और purpose क्या है? The improvement. If it is improving your preparation level, it is improving your answer writing, and it is making sure that you will clear this examination with good score in the PSR, join that. That's it. It's not about the name. It's about the purpose. So if it is fulfilling that purpose, then never think of never have a second doubt in it, whether it's a well-known famous one or very unknown जो किसी को पता नहीं. Okay, so it's don't worry about that कि बाकी लोग शुभ्रा मैम के लगा रहे हैं क्रैश कोर्स और मैं नहीं लगा. जैसे मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में शुभ्रा मैम का क्लास किया था, वो भी इनकम्प्लीट किया था. सिर्फ पेपर 1 का किया, पेपर 2 में मैं चला आया दिल्ली से, क्योंकि मुझे दिल्ली रास नहीं है. सो ओके, आई लेफ्ट दैट क्लास इन बिटवीन. 50% सिलेबस होने के बाद ही मैं चला आया. उसके बाद मैंने शुभ्रा मैम का कुछ नहीं लगाया, फिर भी मुझे मार्क्स आए. सो इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट्स नॉट अबाउट द any test series. It's about you. If you're improving in your preparation, in your answer writing, it is fine. अगर the नहीं कर fact रहा is, तो अगर नहीं कर रहा ना तो शुभ्रा मैम का क्लास भी कुछ नहीं. okay, sir, the जो fact is करना है that तो वो तुम्हें everything, करना है. okay, या the fact is that everything going online is kind of like tiring. So if I can go offline and write an answer, I thought it would be better. That is the only reason Look, why I'm choosing this. yeah, it's good. Listen, it's an individual decision. Some people feel that while doing, because some are very honest even on the online, they actually sit, write 3 hours question paper properly, like they are sitting in the classroom. So it's all about you it's all about the individual perspective. If you think you could improve yourself by writing the test offline, then go ahead. Any दिस और दैट, इसमें इशू नहीं है, हमें इशू है. हमें वो राइट करना है. इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एनी डिसीजन राइट. दैट्स इट. एंड फॉर दैट वी हैव टू टेक एफर्ट्स. इट्स ओनली वी which is going to make the change. कोई इंस्टीट्यूशन या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं चेंज करेगा. दे ओनली गाइड अस. ओके. So make sure wherever you are, make sure you are preparing honestly and in the right direction. Yes. Okay, sir, thank you. Yeah, welcome. Yeah, Imani. हेलो सर. सर, मेरा डाउट था कि जैसे अब पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं मैक्स 1 या 2 लोग 300 के रेंज में जा रहे हैं. तो व्हाट कुड बी द रीजन? उनके में एक तो जैसे आपने ओरिजिनलिटी बताया वो रीजन हो सकता है, बट अदर देन दैट इज देयर समथिंग दैट यू हैव बीन एबल टू पिन पॉइंट कि जिससे हमें पता चले कि हाँ इसके बावजूद जो स्केलिंग हो रही है उसके बावजूद हम 300 जा सकते हैं? मुझे लगता है ना वही है, ओरिजिनलिटी, ऑर्गेनिक
नेचुरल रहना अपने प्रिपरेशन में, और दूसरी चीज ना, डोंट फॉलो एनी अदर्स पाथ। अगर उन्होंने कुछ चीजें पाथ फॉलो किया है तो हम क्या करते हैं ना, टू रिड्यूस अवर एफर्ट्स वी फॉलो समवन एल्स पाथ, वी फॉलो समवन एल्स नोट्स। तो वो एक छोटी डायरेक्शन हो सकती है, उसको ही आप रिप्लिकेट मत करो, जैसे कि जैसे कॉपी मत करो। ओके, आपके स्ट्रेंथ्स ढूंढो यार, कि आपके स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है। क्योंकि है ना, मैंने ये चीज देखी है कि एवरीबडी हैज यूनिकनेस इन हिज और हर आंसर राइटिंग एंड अप्रोच। दैट यूनिकनेस शुड बी मेंटेन। इस यूनिकनेस की वजह से ना आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा आपके आंसर राइटिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द एसे एंड ऑप्शनल। क्योंकि जीएस का क्या है ना, पॉइंट्स में लिखना है, तो उसमें ना ज्यादा स्कोप नहीं है टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। सो वो यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, वो बहुत हेल्पफुल है। जो ऑर्गेनिक, नेचुरल, ऑथेंटिक, ओरिजिनलिटी, वो एसए में और ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ओके, सो उन दो पेपर्स में 750 मार्क्स में से बहुत सही आएगी। ओके मानी, तो मैं वही सर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अंडरस्टूड सर। सर बट हो ये यस, रहा है कि कोचिंग तो कोई ना कोई हेल्प लेंगे ही, टेस्ट सीरीज के लिए कुछ है, वो ठोक पीट कर सबको एक ही उसमें चला रहे हैं। सो एवरीबडी इज देन मूविंग ऑन टू द सेम कंटेंट, सेम स्टाइल, और हम ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी वहीं से लॉस्ट हो रही है। सो इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू कि जो इसमें हेल्प कर सके, बिकॉज फोमो से टेस्ट सीरीज करनी ही वही है। मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ ना, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, ज्यादा ओवर रीड नहीं करना है, और ज्यादा ओवर डंप नहीं करना है। जो पूछा गया है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसी को सीमित रखना है, ठीक है। और ओवर कंटेंट नहीं करना है, बहुत ओवर रीड नहीं करना है कि इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, बाकी के लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर बाकी सब लोग वही कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसी रेस में ना हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। सो इट्स बेटर टू स्टिक टू अवर प्लान, बेटर टू स्टिक टू अवर फाउंडेशनल लर्निंग एंड अवर ओन वे। अब इसमें ना, इन योर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द आंसर्स, ट्राई टू रिप्लिकेट दी प्रॉपर कीवर्ड्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि कीवर्ड्स मतलब 100 के 100 कीवर्ड्स आपको रिप्लिकेट करना है। जो कहना है ना, वो प्रॉपरली उस लैंग्वेज में कहो, बस। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच। या है मैम। Sir, और I ये have ध्यान में जस्ट नहीं दिया, लेट मी क्लियर वन डाउट, कि ये ध्यान में मत रखो यार कि 260 270 या 280 में आ रहे, नो। हमें अपना बेस्ट देना है, क्रिएटिवली देना है, इनोवेटिव से देना है। आप टारगेट मत सेट करो ऑप्शनल के लिए। अगर ऑप्शनल के लिए टारगेट सेट करोगे ना, तो वो एफर्ट्स को आप लिमिट कर रहे हो उस आंसर राइटिंग के, आपके क्रिएटिविटी के, इनोवेटिवनेस के लिए। वो स्कोप बहुत बड़ा है ऑप्शनल में और एसए में एंड जीएस4 में। तो उसको ना टारगेट सेट करके मत बनाओ। आप जितना हो सकता है क्रिएटिव बनो, जितना हो सकता है अच्छे बनो, जितना हो सकता है ऑर्गेनिक बनो अपने आंसर राइटिंग में, और उनको डिसाइड करने दो यार। इतने सही मार्क्स आते हैं ना, यही तो चीज की थी मैंने, तभी तो 300 आए थे। लिमिट ही नहीं सेट किया था, मैं फ्री था, बहुत फियरलेस था। सिर्फ ये जानता था कि नहीं यार, मैं ऑर्गेनिक वे में लिखूंगा, बस जो मुझे आता है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी एनी बडी स्टाइल। तो वही किया और 300 आ गए। और जब दूसरी बार करना चाहा, तो ये जीएस की वजह से ना, मेरी मेरी जो फ्लो है, वो नेचुरल फ्लो, वो हिल गया यार, डिस्टर्ब हो गया। दैट्स व्हाई आई कुडंट गेट 290 300 इन दी लेटर अटेम्प्ट। जहां पे 300 आया था ना, उसके बाद एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में, फिर उसके बाद ना अभी आने स्टार्ट हो गया। लेकिन अब क्या है ना, वो दे ही नहीं रहे मार्क्स। अगर यही पेपर होता ना फ्री हैंड, तब का जैसे चेक हुआ होता, तो लगभग 280 290 आ जाते। तो स्कीम मतलब स्केलिंग बहुत डाउन हुआ है ना इस बार पीएसआर का, तो इट्स नॉट इन अवर हैंड। तो उसके बारे में सोचना ही है। अपने हाथ में है प्रिपरेशन, और फियरलेस होके मस्त एकदम अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस दिखाना, वही करना है, ऑर्गेनिक रहना है बस। ओके, या निधि? Sir,
Any specific toppers that you refer to? Just यार मेरा क्या है ना, मैंने 5 इंटरव्यूज दिए, तो बेसिकली ना मेरे टॉपर्स थोड़े अलग अलग थे। ओके, तो मैंने पहले आरिफ शेख को किया था यार, मतलब मैं, बहुत पुराना है वो बंदा, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सही थी। देन अपने द्विवेदी सर, अब रिसेंटली ना 22 के बाद, तो वो थे। देन मैंने देखा यार कनिका गोयल, सो शी इज वेरी गुड। मुझे उनकी स्टाइल बहुत पसंद थी, उनकी इंटरमिक्स स्टाइल थी, जैसे ईशिता किशोर मैम की जैसे भी नहीं थी, जो कि बिल्कुल ही अलग लेवल थी मैम की तो, लेकिन ये सही थी कनिका गोयल मैम की। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर अच्छे से पढ़ना है तो कनिका गोयल मैम के देख लेना है, कॉपी बहुत सही है उनके। ठीक है। हाँ सर, एंड आपने मुझे कहा था यूनिक एकेडमी करके कुछ तो था पुणे में, एंड यूज्ड टू राइट आंसर्स। हाँ, सो वो भी तो वो मैंने ऑफलाइन दिए थे टेस्ट। ठीक है, तब मैं पुणे में प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि वो एकेडमी से ज्यादा ना आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है। उस एकेडमी ने मुझे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दिया है, वैल्यू एडिशन मैंने खुद पे किया है, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं राइट करता था, फिर उसके बाद ये मैं आपको, मतलब मैं लाइब्रेरी से आता था, ठीक है, 9:30 10 बजे, फिर फ्रेश होके ना 10:30 बजे बैठता था हॉल में ऐसे चटाई डाल के, और जो टॉपर्स कॉपीज है ना नीचे, वो लेता था, और जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं या फिर जो भी टॉपिक्स में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो वो सेक्शनल टेस्ट उठाता था उस टॉपर की। ठीक है, और वो उसके साइड वाले पेज पे या उस मार्जिन में मैं प्रॉपर 1 1.5 घंटा लिखता था, बहुत तरीके से। एंड देन आई यूज टू रीड कि उसने क्या लिखा है, तो उससे वो डेवलप होने स्टार्ट हुआ था मेरा माइंडसेट। और मैंने ये बहुत दिनों तक किया है, लगभग 2 3 महीनों तक किया है ये चीज। तो उससे उसकी वजह से ना मेरा एक फाउंडेशन बेस्ट हो गया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, और हमेशा पीएसआर ऑप्शनल को लेके उनकी यही, मतलब यही रोना रहा है कि यार यू आर गेटिंग हमेशा 260+, और हमारा स्कोर इसी रेंज में रहता है 230 220। हम सब कर रहे हैं, कुछ सब कर रहे हैं चीजें, लेकिन कुछ बन नहीं रही है बात। तो मैं ये बोलता हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में ये चीजें करनी जरूरी है। आप 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 6 मेंस देने के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ना अनलर्न बहुत करना होता है। योर स्लेट इज बरी पड़ी, एंड नाउ योर स्लेट इज क्लीन, थोड़ा ठीक से उस पर स्ट्रेटेजी करके अच्छे से लिख सकते हो। सो मेक श्योर योर इनिशियल अटेम्प्ट्स, इन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स यू मस्ट हैव राइट डायरेक्शन और राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। अगर वो फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली आप एक रीच के नीचे नहीं जा सकते कभी भी, कितना भी वर्स्ट परफॉर्मेंस आपका हो। तो वही मेरा प्रीलिम्स का रहा है। ठीक है, तो वो फाउंडेशनल लर्निंग बहुत सही है, इसलिए प्रीलिम्स का कभी स्कोर नीचे नहीं। okay, sir. Thank you so much. यस, एनीवन एल्स? Hello. Hello, sir. या गो अहेड। हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो, जसविंदर कौर, आई डोंट नो, इट्स जैस कौर। हेलो, हेलो, सो ओके, Kimani, sir, have you shared your notes or is there any Telegram channel of yours? Please share if you have. नहीं यार, मैंने, मेरा कोई नहीं है चैनल भी, ओके, ना ग्रुप है। तो मैं कोशिश करता हूँ सर को दे दूं कुछ सैंपल नोट्स, सो दैट आपको एक थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे निकालने हैं नोट्स। ओके, सो आई ट्राई अबाउट इट। ठीक है, और कोई सवाल पूछना चाहता है? एनीवन एल्स? Hello, sir.
यस सारिका। सर जब आपने मैम का बैच ज्वाइन किया था शुभ्रा मैम का, तो उस टाइम के नोट्स होंगे ना सर आपके पास, जो बुकलेट्स आते थे, तो अब बाद में मैंने आपने तो उनको वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया पता है, मैंने ना एक बार ये चीज की कि मैंने वो नोट्स मेरे खुद के हाथ के लिखे थे, ठीक है। यस सर, यस। हाँ, तो मैंने क्या किया था ना, वो सेकंड हाफ के लिए ना वो पोस्टल करस्पॉन्डेंस के नोट्स खरीदे। ओके। तब मैंने सोचा कि यार मैंने जब पहले लिखा था ना उस पे बहुत अंडरलाइंस किए, बहुत हाईलाइट किए, तो मैंने क्या किया, वो नोट साइड में रखे मेरे खुद के हैंड रिटन वाले, और पूरा पोस्टल करस्पॉन्डेंस ले लिया। और ये चीज की थी मैंने दूसरे इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। तो वहां से अभी तक मैं वही नोट्स यूज कर रहा हूँ, वही। मैंने कुछ नया ढूंढने की कोशिश नहीं की, नए मैम के नोट्स कंपेयर नहीं किए उसके साथ, बिल्कुल नहीं। जो भी करना है ना वो हमें करना है। मैम्स के नोट्स नोट्स ना 80% 85% दे रहे हैं, हमें उसमें 15-20% ऐड करना है। ओके। तो जो सर भी पहले नोट्स एक्चुअली सारिका आई तुमने वाज रीड किए हुए हैं ना, तो वही रीड करो, हम्म। वही रीड करो जो आपने ओके, नोट्स। हाँ, उसको कुछ चेंज मत करो। यस सारिका। राइट सर, यस। Sir, I was thinking to have, sir, I never had मैम्स बैच। जो मैंने नोट्स मार्केट से लिए थे, उसी को मैंने रीड किया था। लेकिन लास्ट ईयर से आई वाज रियलाइजिंग दैट मुझे थोड़ा सा एक आध वीडियो लेक्चर मैम का मैं सुनती हूँ तो वो फ्लो बिल्डअप हो जाता है अच्छे से। सो आई वाज थिंकिंग टू हैव मैम्स टैबलेट कोर्स, एंड मेरे प्रीवियस नोट्स है मैम के, तो वो उन दोनों को कैसे कंसोलिडेट करना है ये मैं सोच रही थी। सो आप गाइड कर सकते हो सर इस चीज आपने पे? ज्वाइन किया है क्या टैबलेट वाला क्लास? नहीं, अभी मैं लेने वाली हूँ। ओके, तो मैम टैबलेट क्लास के साथ शायद नोट्स भी देते हैं। सर आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट क्योंकि मेरे क्या है ना, पास वो मैम मैम के लिखने के नोट्स है लिए भी पहले बोलते हैं, वाले। चीजें लिखने हाँ। के लिए भी बोलते हैं मैम। और क्या है ना, मैम का नोट्स, मैम का क्लास ना बहुत बड़ा आएगा, बहुत लॉन्ग है। इतना बड़ा मतलब ऐसे लगता है ना कि PSR क्यों लिया, इतना बड़े बड़े क्लासेस, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स है। सो मेक श्योर कि जी। उसमें टाइम चला ना जाए सारे का। क्योंकि क्या है ना, तुम्हें तो अभी बेसिक आइडिया आ चुकी है, जैसे तुमने रीड किए होंगे ना नोट्स पुराने वाले। सो जो तुम्हें चाहिए ना उसमें रिस्क ले लो। क्या है ना, हमेशा हमें लगता है वो फोमो हो जाता है कि यार नहीं पढ़ूंगा नहीं करूंगा तो मुझे लगता है ये चीज मिस हो जाएगी, नहीं होता वैसे। ओके। तो दूसरी चीज ना, वो टॉपिक देख लेना, और जब पढ़ोगे ना तो उसमें ही वैल्यू एडिशन कर लेना साइड में। उसके लिए स्पेशल नोट्स मत ओके सर। बनाने बैठना। हाँ। ओके, ओके, राइट सर। हाँ। यस। यस। एनीवन एल्स? Hello, sir. यस। Sir, am I audible now? या यू आर ऑडिबल। Okay. सर अभी ना मेरे जस्ट PSIR के लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं एंड सो व्हाट शुड ओके। बी द रिवीजन अप्रोच एंड कब तक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेनी चाहिए एंड आंसर राइटिंग अलोंग विद इट। ओके, सो मेरा मानना है कि दिसंबर तक आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस। इवन दे गिव यू मेंस पेपर ऑन 1 Jan, तो आप लिख सकते हो उस पेपर्स को। तो उतनी लेवल की और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उतनी लेवल की प्रिपरेशन आपकी 31 December तक होनी चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग इज, नाउ इन दीज 6 months, make sure that your target should be 3 readings at least of the optional। ओके। उसमें ना फर्स्ट, अब जैसे फर्स्ट रीडिंग आपने कंप्लीट की है, नाउ इट्स रिवीजन टाइम। सो स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कि आप उस टॉपिक से पहले PYQs पढ़ो, देन वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। जैसे प्लेटो हो गया या फिर थियरी ऑफ जस्टिस होगी, तो बिफोर रीडिंग थियरी ऑफ जस्टिस, लाइक यू हैव टू गो थ्रू दी PYQs जो भी आए हुए हैं वो थियरी ऑफ जस्टिस से। सो आइडेंटिफाई द थीम्स, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो वो सब करके वो टॉपिक पढ़ लेना, और उसके बाद ही आप PYQs लिख लेना जो रिपीटेटिव थीम्स पे आ रहे हैं। ओके। सो दैट शुड बी योर अप्रोच। सेकंड,
स्टार्ट राइटिंग सेक्शनल टेस्ट। मैम के नोट्स, मैम के टेस्ट लिख लो, टेस्ट सीरीज, या फिर किसी भी मार्केट से टेस्ट सीरीज देख लेना, या फिर किसी क्लास का ज्वाइन कर लेना। तो वो सेक्शनल टेस्ट सीरीज लिख लेना और फुल लेंथ लिख लेना। तो आपका टारगेट चाहिए, जैसे मैंने बताया, 8 सेक्शनल टेस्ट लिखने हैं आपको और 4 फुल लेंथ लिखने हैं टिल दिसंबर। ओके, तो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। और उसमें उसके साथ ना वो टॉपर्स कॉपीज वाला जो चीज मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि 2-3 टॉपर्स सिलेक्ट कर लेना, उनकी हार्ड कॉपीज निकाल लेना, एंड बिफोर रीडिंग द टॉपर्स आंसर, उस क्वेश्चन के लिए आप साइड में थोड़ा आंसर लिखना कि तुम क्या लिखते, तुम्हारी क्या इंट्रो होती, क्या कंक्लूजन होता, व्हाट वुड बी योर फ्लो। सो राइट दैट इन रफ एंड देन ट्राई टू कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर्स आंसर, so that you could realize, you could identify the missing parts from your answer. Okay. ओके सर। एंड रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, जैसे हम न्यूज पढ़ेंगे इसमें, तो हम उससे वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? एंड फिर सर न्यूज़पेपर रीडिंग में टाइम भी काफी लग जाएगा फिर इससे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा वही चीज मैं बोलता हूँ कि यार 40-45 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ने। इंडियन एक्सप्रेस लेना है बस, आ गया एक आध आर्टिकल जो मैम के नोट्स में ना हो, या फिर मैम के नोट्स के हिसाब से ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है उसमें, सो नेवर मेक नोट्स ऑन दैट। But if the question, if the article or the editorial is based on some very important relations, like Indian America या फिर इंडो चाइना या फिर यूनाइटेड नेशंस, और आईजीपी का कुछ पार्ट है, जैसे जुडिशरी हो गया या फिर पार्लियामेंट हो गया, उस पे कुछ आ रहा है ना, और उससे तुम्हें लग रहा है कि इससे कुछ वैल्यू एडिशन में मैम के नोट से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो यार 20-25% होनी चाहिए वैल्यू एडिशन, ना कि सिर्फ 1% और 2%। तो उसका कोई जरूरत नहीं है, 1-2 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो यूनिक चाहिए उस एडिटोरियल में, जिससे आपका आंसर एनरिच्ड हो, ना कि अगर वो लिखते नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो वो लिखो ही मत। ऐसा लिखो जिससे यार हाफ एन एक्स्ट्रा या फिर एक एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकता है। तो उस टाइप के नोट्स बनाओ आप करंट अफेयर्स से। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। यस, या वेलकम यार। ठीक है, फिर wrap up करते हैं, if anybody does not have any other question। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, थैंक यू बाय सर। बाय।